ناشتے سے فارغ ہو کر مسٹر آلووالیہ اس کو میٹنگ روم میں لے گیا اور کہا یہ ہے آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ اور دوسری شناختی کاغذات۔ انہوں نے بریف کیس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بریف کیس کھولنے پر اس میں سے ایک برٹش پاسپورٹ برآمد ہوا جس میں اس کا مسلمان نام حمید خان لکھا ہوا تھا۔ اس پاسپورٹ کے مطابق اس کا جنم لندن میں ہوا۔ اس کے والدین پاکستان سے تھے اور گزشتہ 30 سال سے لندن میں قیام پذیر تھے۔ وہ خود ایک گارمنٹس مینوفیکچرنگ کمپنی کا ڈائریکٹر تھا اور اکثر تجارتی دورے کرتا رہتا تھا۔ اب بھی وہ لندن سے بمبے، وہاں سے کراچی اور پھر کراچی سے بمبے، دبئی ہوتا ہوا واپس لندن جا رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کا بزنس اور تفریحی ملا جلا ٹرپ تھا۔ اسے کل ایک غیر ملکی ایئر لائن سے صبح کی پرواز پر کراچی جانا تھا۔ فرسٹ کلاس میں اس کی سیٹ ریزرو تھی اور واپسی کا سارا پروگرام بھی ٹکٹ کے حساب سے مکمل تھا۔ اس کی بطور بزنس مین پوزیشن بنانے کے لیے اس بریف کیس میں اس کی بزنس دستاویزات، جن میں کچھ تجارتی معاہدے اور دوسرے جعلی دستاویزات شامل تھیں، بھی موجود تھیں۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی جعلی دستاویزات کو کہ اصلی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے بہت جلد پکڑے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جس کمپنی کے نام سے یہ کاغذات تیار کیے گئے اور دوسرا گورکھ دھندا پھیلایا گیا تھا، وہ واقعی لندن میں موجود تھا۔ یقیناً وہ راہ کا کوئی مقامی آفس رہا ہوگا، کیونکہ یہ لوگ بھی موساد کی طرح غیر ممالک میں تجارتی فرم اور دفاتر کی آڑ میں اپنا جاسوسی کا بزنس چلایا کرتے تھے۔ بریف کیس میں مختلف کریڈٹ کارڈز اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی تھے کہ ان کا مالک کوئی معمولی قسم کا ٹریولر نہیں۔ اس کے جعلی دستخطوں والے ٹریول چیکس شاید ان لوگوں نے موساد کی مدد سے حاصل کیے تھے۔ موساد کے ہر ایجنٹ کو کچھ خاص قسم کے نام اور دستخط کرنے کے باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ ان دستخطوں کے ذریعے وہ دنیا کے مختلف بینکوں اور ممالک میں اپنا کام دھندا چلاتے تھے۔ ان دستخطوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ دستخط کرنے والے کے نام کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے، نہ ہی اس بات کا علم ہوتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کا تعلق کس ملک سے ہے۔ چونکہ اس طرح کے خصوصی دستخط دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کیا کرتے تھے، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں گزرتا تھا اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایسے خاص دستخط کسی جعل سازی سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ویل ڈن۔ اس نے تمام کاغذات اور دستاویزات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد انہیں داد دیتے ہوئے سب کچھ بریف کیس میں واپس رکھ لیا۔ چونکہ وہ خود جعلی دستاویزات تیار کرنے کا ماہر تھا، اس لیے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ اناڑی ہاتھوں کا کھیل نہیں، کھلاڑی ہاتھوں کا کام ہے۔ تھینک یو، آلووالیہ نے مسکراتے ہوئے داد وصول۔ میں چاہوں گا کہ اپنا پستول ساتھ رکھو۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ چوہان اور آلووالیہ ایک لمحے کے لیے کسی سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، لیکن یہ آپ کو کراچی پہنچنے پر ملے گا۔ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے چوہان سے کہا، تھینک یو اینی وے۔ اس نے چوہان کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ مسٹر خان، وہ اب اسے پاسپورٹ والے نام ہی سے مخاطب کر رہے تھے۔ آپ کا غائبانہ تعارف تو مسٹر قریشی اور ضیائی اور مس شیری سے ہو چکا ہے۔ ان کی فلم ابھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ یہ کہہ کر چوہان نے سامنے دھرے وی سی آر کا بٹن دبایا اور ایک بڑی ٹی وی سکرین پر فلم چلنے لگی۔ اس فلم میں شیری، قریشی اور ضیائی کے علاوہ سیٹھ دارو والا کو بھی مختلف تقاریب، آفس اور شہر کے مختلف مقامات پر مصروف دکھایا گیا۔ 15 منٹ کی اس فلم میں ان کے گھر روزانہ کے معمولات، ان کا رہن سہن اور کچھ عادات کی بخوبی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ یہ آپ کے میزبان ہیں، چوہان نے فلم کے خاتمے پر کہا۔ آپ کو ایئرپورٹ سے مس شیری اور مسٹر ضیائی لینے آئیں گے، جو آپ کے نام کا ہورڈنگ پکڑے ایگزٹ لاؤنج کے باہر آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ کا پستول بھی وہاں پہنچنے کے 3 گھنٹے بعد آپ تک پہنچ جائے گا۔ مسٹر یعقوب، ٹارگٹ آپ کے علم میں ہے۔ یہ لوگ آپ کے ہر حکم کی اطاعت اور غلاموں کی طرح کریں گے۔ آلووالیہ نے مسکراتے ہوئے کافی کا گھونٹ حلق میں انڈیلا، لیکن کام آپ ہی کو کرنا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ مسٹر خان، ہمارا مطلب ہے پلاننگ آپ نے کرنی ہے۔ اپنی ہر ڈیمانڈ آپ بلا تکلف انہیں بتا سکتے ہیں۔
इस टीम का कैप्टन कुरैशी है, जिसके बाद ज़ियाई, फिर शेरी का नंबर आता है। शेरी का बॉस मिस्टर दारू वाला सिर्फ ब्लैकमेल होकर हमारा काम कर रहा है। इस इम्कान को हर वक्त जहन में रखिए कि वो किसी भी वक्त खौफजदा होकर या अपनी किसी गलती से झुंझलाहट का शिकार होकर आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। आपको अपनी प्लानिंग इस इम्कान को जहन में रखने के बाद करना होगी। बाकी लोग अपने काबू में हैं, खास तौर पर कुरैशी और ज़ियाई पर आंखें बंद करके एतबार किया जा सकता। चौहान ने इसे ब्रीफिंग देते हुए कहा। तीनों कुछ देर बातें करते रहे, फिर वो जाने के लिए तैयार हो। हम अब चलते हैं, आपसे कल एयरपोर्ट पर मुलाकात होगी। वैसे तो आप मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आज शहर में अकेले न जाएं, क्योंकि रात से बहुत हंगामे हो रहे हैं। दो सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। कल एक मामूली वाक़े के बाद से हालात कुछ खराब हो गए। आलू वालिया ने इसे बिला आखिर कह ही दिया। ओह वेरी सैड, यासूब ने अफसोस के लहजे में कहा। ठीक है, अगर मुझे बाहर जाने की जरूरत महसूस हुई तो ड्राइवर और गार्ड के साथ ही जाऊंगा, इसने कहा। ओके, अपना पिस्तौल दे दीजिए, कल आपको कराची में मिल जाएगा। इस तरह वापसी पर भी आप कुरैशी के पास जमा करवा दीजिए और यहाँ आकर वसूल कर लीजिए। चौहान ने कहा ओके। यासूब ने इन्हें अपना पिस्तौल दे दिया और दोनों चले गए। अगले रोज वो मामूल से कुछ पहले बेदार हो गया। अब वो अपनी ज़हनी हालत पर खुद परेशानी महसूस करने लगा था। खुदा जाने वो बुज़दिल हो गया या फिर कुछ और बात थी कि इसे पाकिस्तान जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था। इसने गुज़िश्ता 2 सालों में मुख्तलिफ मिशन अंजाम देने के बाद मुतअद्दिद मरतबा इसराइल की सरहद अबूर की और गैर कानूनी तौर पर शाम गया। शाम से मुतल्लिक वो लोग खास से मुख्तात रहा करते थे, लेकिन खौफ इसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा था। इसे जो भी मिशन सौंपा गया, इसे मुकम्मल करने के बाद वो इत्मीनान से बगैर किसी की मदद के सरहद अबूर करके इसराइल वापस आ जाया करता था। इसे पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा था, इसने अपने आप से पूछा। क्या सिर्फ प्रोफेसर शाह को कत्ल करने के लिए, जिसका ये गुनाह है कि एक गैर तरक्की याफ्ता मुसलमान मुल्क में जन्म लेकर इसने इतनी ज़हनी इस्तात क्यों हासिल कर ली कि आज एटमी मैदान में वो दुनिया के बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए चैलेंज बना हुआ है? क्या इसराइल को पाकिस्तान से बराह रास्त कोई खतरा है? माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने इसराइल पर हमला कर दिया हो या इसकी फौजें किसी अरब मुल्क की फौज के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग में हिस्सा ले चुकी हो। तो फिर ये सारा गोरख धंधा क्या है? क्या रा के पास ऐसा कोई सूरमा नहीं जो डॉक्टर शाह को कत्ल कर सके? इन लोगों का अगर कराची में इतना मजबूत नेटवर्क मौजूद है तो फिर मुश्किल क्या पेश आ रही? बजा के रा और मुसाद के मिसाली ताल्लुकात कायम हो चुके थे। इसकी इतला के मुताबिक रा अरब ममालिक में खसूसन इसराइल के लिए बहुत से कारनामे अंजाम दे चुकी है। ईरान में रा ही की मदद से वो अपना कारोबार चला रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर शाह का कत्ल कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं जिसके लिए वो मुसाद की खिदमत हासिल करते। फिर एक लहर आई और सोच के जाविये को नया रुख दे जाती। ऐन मुमकिन है वो लोग वाकई बेबस हों। आखिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों से मुतल्लिक तो वो भी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं थे। इसे याद आ गया इंटेलिजेंस का मजमून पढ़ाते हुए इंस्ट्रक्टर रैफ ने इसे ISI के मुतल्लिक बाज ऐसी बातें बताई थीं जिन्होंने इन सब को चौंका कर रख दिया था। यूं तो इन्हें दुनिया की हर काबिल जिक्र इंटेलिजेंस पर लेक्चर दिए जाते एजेंसी पर लेक्चर दिए जाते थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि सबसे ज्यादा CIA और अरब ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी ज्यादा तफसील के साथ ISI का मजमून पढ़ाया गया था। इंस्ट्रक्टर रीफ ने इन्हें आखिरी दिनों में एक ऐसी बात कह दी थी जिसने अचानक यासूब के दिलो दिमाग को जकड़कर इसे बेबस कर दिया था। इसने अपने शागिर्दों से कहा था, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग कोई भी मिशन इसलिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ अंजाम देते हैं कि इन मुतलका मुल्क ने इसकी बेहतरीन तरबियत और वसाइल मुहैया किए होते हैं, लेकिन ISI का मामला मुख्तलिफ है। इनका बजट महदूद और वसाइल खसूसन हमसाया मुल्क भारत की राह के मुकाबले में ना होने के बराबर है।
تربیت کا معیار بھی نارمل ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے را کے برعکس بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے جو انہیں دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے منفرد اور نمایاں کرتی ہے کہ وہ لوگ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں، وہ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ یہی ان کا ترہ امتیاز بھی ہے، یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ یوری شریف نے انہیں کہا تھا کہ ISI کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ ان لوگوں نے بھارت کی 7 لاکھ فوج کو گزشتہ 6 سال سے کشمیر میں پھنسا رکھا ہے۔ اس سے زیادہ ان کی پروفیشنل سکل اور کیا ہوگی؟ یہ بہترین معیار ہے۔ اس کے باقی انسٹرکٹر بھی اکثر اسباق پڑھاتے ہوئے کسی نہ کسی حوالہ سے ISI کو زیر بحث لایا کرتے تھے۔ ان کے انسٹرکٹر بطور خاص اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہیں لاشعوری طور پر ہی وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں جس سے ان کے شاگرد موساد کو دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی سے کم درجہ دینے لگے، کیونکہ ان کا یہ طے شدہ فیصلہ تھا کہ دنیا کے بہترین لوگ وہ ہیں اور دنیا کی سب سے مضبوط اور اپنے میدان میں اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل انٹیلیجنس ایجنسی کا نام موساد ہے۔ انہیں ہر لیکچر کی ابتدا میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ بہترین اور ذہین ترین انسان ہے۔ شاید یہی سچ ہو، شاید را واقعی پروفیسر شاہ کو نہ مار سکتی ہو، کیونکہ وہ کائیڈون ہے۔ اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی شکار کو مارنے کی بہترین تربیت حاصل ہے۔ شاید اسی لیے اسے میدان میں اتارا گیا، لیکن کیا اس مرتبہ وہ 100% رزلٹ دے سکے گا؟ اچانک ہی اس پریشان کن سوال نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ کسی بھی انسان کو دنیا کے کسی بھی ملک میں قتل کرنا اس کے لیے کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہاں شاید ایسا نہ ہو۔ کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ جہاز فضا میں اپنی مخصوص بلندی پر پہنچ چکا تھا اور فلائٹ پر مسافروں کو سیفٹی بیلٹ کھولنے کی اجازت دے رہے تھے۔ مخصوص نشستوں پر سموکنگ سائن جلنے لگے۔ فرسٹ کلاس کا مسافر ہونے کے ناطے یوں تو بمبے سے جہاز میں سوار ہوتے ہی اس کی خاطر مدارات شروع ہو گئی تھی، لیکن اب بطور خاص اس پر توجہ دی جا رہی۔ اب بھی ایک ایئر ہوسٹس پلیٹ میں گرم پانی کے چھوٹے چھوٹے رول نما تولیے اور ہاتھ میں اسٹیل کا چھوٹا سا چمچ لیے اس کے دائیں ہاتھ کھڑی تھی۔ یاسوب نے شاید پریشان خیالی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک رول نما تولیہ رکھ لیا تھا۔ 2-3 مرتبہ تولیے کو ہوا میں لہرا کر اس کی بھاپ اڑانے کے بعد اس نے اپنے منہ اور ہاتھ پر تولیہ پھیرنے کے بعد واپس اسی پلیٹ میں رکھ۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس نے اس کے سامنے دھری تشتری کے ایک کونے میں رکھے پلاسٹک کے کپ میں کافی کنڈیل دی۔ بے خیالی میں شاید اس نے ضرورت سے زیادہ گرم کافی کے کپ کو منہ سے لگایا تھا، جس سے اسے ہونٹ جلنے کا احساس ہوا تو وہ چونکا۔ ابھی تک عجیب و غریب ڈگر پر سوچوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی تک پیرس والا مقتول فلسطینی اس کے دماغ پر سوار تھا۔ ابھی تک اسے عارفہ کی یہ بات ہچکولے دے رہی تھی جب اس نے جھونپڑی سے فرار ہونے کے بعد یاسوب سے کہا تھا کہ آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ مسلمان ہیں؟ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر لے تو کیا وہ راتوں رات دنیا کا امیر ترین انسان بن جاتا ہے؟ ورنہ وہ صرف اس لیے واجب القتل ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہی سوال اس سے فلسطینی نے کہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کرتا تھا، تم مجھے کیوں مار دینا چاہتے؟ تم ہمیں کیوں مارتے ہو؟ کیا تمہیں تمہاری طرح آزاد انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق نہیں؟ کیا تمہارا مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے علاوہ دنیا کے ہر مذہب کے پیروکار کو مار ڈالو؟ اگر ایسی بات ہے تو تم عیسائیوں اور ہندوؤں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ آخر تم ہمیں ہی کیوں مار دینا چاہتے؟ اور اب اچانک اس کے ضمیر نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ پروفیسر شاہ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر سوچ نے پلٹا کھایا۔ کیا راہ ایک تیر سے 2 شکار نہیں کر رہی؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس کے ہاتھوں یہ کارنامہ انجام دلانے کے بعد خود ہی ایسے حالات پیدا کریں کہ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کو ثبوت مل جائیں کہ پروفیسر شاہ کو موساد نے قتل کروایا؟
इस तरह वो इनको आपस में टकरा कर अपना उल्लू सीधा कर ले। इस तरह बराह रास्त वो लोग मुसाद के सामने आ जाएं, एक नया महाज खुल जाए और इनका दुश्मन मजीद उलझ जाए। जहन्नम में जाए सब कुछ, इसने दिल ही दिल में कहा और अपने सामने वाली सीट की पुश्त पर लगे थैले से मुख्तलिफ मैगजीन निकाल कर इनके वर्ग गर्दानी करने लगा। इसी स्ना में पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी, ख़वातीनो हजरात, हम थोड़ी देर बाद कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। और इस ऐलान ने इसे चौंका दिया। अपनी सीट बेल्ट बांधने के बाद वो सीधा और मुस्तैद होकर बैठ गया। इसका ज़हन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। जहाज ने शायद चक्कर काटा था, जिसके बाद इसकी ऊंचाई कम होने लगी और अब वो बादलों की चादर से निकलकर बराह रास्त सूरज की शौं की जद में था। यासूब ने खिड़की से बाहर झांका। छोटे छोटे मकान और इमारतें आहिस्ता आहिस्ता नुमायां होने लगी। जहाज के पहिए खुल गए थे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन नजदीक आ रही थी। ऐलान के बमुश्किल 10 मिनट बाद ही इसने बिलाकर कराची एयरपोर्ट के रनवे को छू लिया और थोड़ी देर बाद वो अपना ब्रीफ केस उठाए दूसरे मुसाफिरों की तकलीद में जहाज से बाहर आ रहा। इसकी शख्सियत थी या फिर यहाँ मौजूद अमले का एहसास कमतरी की वजह जिस काउंटर पर गया, इसके पासपोर्ट पर इसकी एक सरसरी नजर डालने के बाद वहां मौजूद एहलकार ने सर कहकर इस पर मोहर लगाकर आगे बढ़ा दिया। जहाज के पेट से बरामद होने वाले सामान में से अपना बैग इसने खुद नहीं उठाया था। ये काम इस कुली ने किया था जो इसके बैगेज लाउंज में घुसते ही लोहे की रेडी घसीटता इसके सामने सवाली बनकर आन खड़ा हुआ। एक बैग है नीले रंग का। इसने अपना बैगेज टैग कुली की तरफ बढ़ा दिया, जिसने दूसरों की तरह धक्के मारते हुए जगह बनाकर बिल्कुल वहां से बैग उठा लिया जहां से सामान एक सुरंग से निकलकर बेल्ट पर गिर रहा था। यही है सर, इसने अपने कारनामे की दाद वसूल करने के लिए यह एक तरफ इत्मीनान से खड़े यासूब के पास पहुंचकर कहा। ओ यस, यासूब ने बेनियाजी दिखाते हुए कहा। वो यासूब को ग्रीन चैनल से बाहर ले आया। यासूब हैरान था कि किसी ने इसके बैग की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं किया। शायद वो लोग इसकी शख्सियत से कुछ ज्यादा ही मुतासिर दिखाई दे रहे थे। इसे इस बात पर कोई हैरानगी नहीं थी कि इसने जैली दस्तावेजात पर कामयाब सफर किया है, क्योंकि वो ऐसा पहली मर्तबा नहीं कर रहा। अलबत्ता वो ये देख कर कदरे परेशान हो गया था कि यहाँ किसी मरहले पर इसे शक की नजर से नहीं देखा गया। ना ही किसी भी जिम्मेदार ने इस नुक्ते नजर से इसके पासपोर्ट का जायजा लिया कि वो जैली भी हो सकता है। स्ट्रेंज, इसने जेरे लब बुड़बुड़ाते हुए। गेट से बाहर एक तूफान बदतमीजी बरपा था। कुछ लोग मुख्तलिफ नामों के होर्डिंग पकड़े खड़े थे। एक खूबसूरत औरत ने इसका नाम का कार्ड उठा रखा था। यासूब ने इसके नजदीक पहुंचकर इसे मखसूस इशारा किया और दूसरे ही लम्हे वो हेलो मिस्टर खान का नारा लगाकर इससे बगलगीर हो गई। ये सब इसे भूख ला देने के लिए काफी थी, लेकिन वो संभल गया। शायद वो खुद को बहुत बेतकल्लुफ जाहिर करने के लिए ऐसा कर रही थी। हेलो सर, आई एम ज़ियाई। खातून के पीछे खड़े ज़ियाई ने अपना तारुफ करवाते हुए इससे गर्मजोशी से मुसाफा की। यासूब ने दोनों को बखूबी पहचान लिया। दोनों की फिल्में और तस्वीर इसे बार बार दिखाई गई थी। इस तरफ आइए सर। शेरी ने कुली से यही बैग रेडी समेत वसूल करके इसकी तरफ एक बड़ा नोट बढ़ा दिया। थैंक यू मिस कहकर कुली वापस लौट गया। मेरा नाम शेरी है मिस्टर खान, आपसे मिलकर खुशी हुई, यासूब ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने एहतियातन अपनी आंखों पर रे बैन की ऐनक सजाई थी, जिससे इसकी पर्सनैलिटी को और भी चार चांद लग गए थे। रेडी धकेलती वो यासूब के साथ ही सड़क के मुल्हिक का फुटपाथ पर खड़ी हो गई। दोनों ज़ियाई के मुंतजिर थे जो पार्किंग से गाड़ी लेकर इस तरफ आ रहा था। थोड़ी देर गाड़ी वहां पहुंच चुकी। ज़ियाई ने अंदर ही से कोई बटन दबाकर डिग्गी खोली और शेरी ने इसका बैग डिग्गी में रखकर डिग्गी बंद कर दी। दोनों अब पिछली सीट पर बैठ गए। ज़ियाई गाड़ी चलाता हुआ कराची के एक मॉडर्न और खास से महंगे इलाके की तरफ जा रहा था। बिलाखिर इसने गाड़ी एक बंगले के सामने रोक। गाड़ी पर शायद किसी की पहले से नजर थी, क्योंकि जैसे ही गेट के सामने रुका दरवाजा खुल गया। ये अंदर आने का इशारा था। ज़ियाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और गेट दोबारा बंद हो गया। मेन गेट के अंदर एक कोने में मौजूद लकड़ी के डब्बे से बाहर खड़े पठान चौकीदार ने हाथ उठाकर इन्हें ताज़ीम दी।
यासूब बंगले के अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। ऐसे शानदार बंगले इसने दुनिया में कम ही देखे। यहाँ ऐसे बंगले कितारन दर कतार मौजूद थे और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि किस गधे ने पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहा। बज़ाहिर तो ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क दिखाई दे रहा था। पोर्च में गाड़ी रुक गई। ज़ियाई अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और इसने पिछला दरवाज़ा खोल दिया, जिससे शेरी बाहर निकल आई। अपनी तरफ से वो यासूब वाला दरवाज़ा खोलने वाला था, लेकिन इसके उतरने से पहले यासूब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और इसने शेरी को हाथ के इशारे से आगे चलने के लिए कहा, जो हैरानगी से इसकी तरफ देख रही थी। मिस्टर खान, आपको यहाँ क्या करना है? ये मेरा बंगला है। यहाँ कभी कभी मेरे खावन सेठ दारू वाला भी रात गुजारने आते हैं। अगर कभी वो अचानक आ भी जाए तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इन्हें हमारी तरह ही अपना फर्मा बरदार पाएंगे। शेरी ने, थैंक यू, शायद मैं आपको ज्यादा मेहमान नवाजी की जहमत ना दूं। यासूब ने मुस्कुराहट उछाली। जनाब, हमें आपकी खिदमत से खुशी होगी। ज़ियाई ने मुस्कुराने की कोशिश की। आइए सर। इस मर्तबा फिर शेरी ने कहा। खान प्लीज ख्याल रखिए, यासूब ने इसे याद दिलाया। ओके मिस्टर खान, मैं अब आपसे शाम को मिलूंगा। आपकी अमानत भी हमारे पास पहुंच गई है। मिस्टर कुरैशी को अचानक हैदराबाद जाना पड़ा। इन्हें आपकी आमद की इत्तला मिल गई है। वो भी शाम को तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हम मजीद बातचीत भी करेंगे। आप आराम फरमाइए। ये कहकर ज़ियाई ने इसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। यासूब ने लापरवाही से कंधे उचकाए और इससे मुसाफा करके शेरी के ताकुब में चलने लगा, जो इसे इसका कमरा दिखाने जा रही थी। ये है आपका कमरा, इसने लकड़ी का एक खूबसूरत दरवाजा खोलते हुए कहा। यासूब ने कहा थैंक यू और अपना बैग एक तरफ रख कर कमरे की समंदर की सिमत खुलने वाली खिड़की खोल दी, जहां से ताज़ा हवा के झोंकों ने इसके मसाम जान को मअत्तर कर दिया। एयर कंडीशन ऑन कर दो मिस्टर खान? शेरी ने पूछा। नो, जरूरत हुई तो मैं खुद चला लूंगा। राइट, आप आराम कीजिए, 2 बजे को खाने के लिए जहमत दूंगी। और इसका जवाब सुने बगैर दरवाजा बंद करके बाहर निकल। न जाने हमीद खान की शख्सियत में ऐसी क्या बात थी कि शेरी चाहने के बावजूद अभी तक इससे घुल मिल नहीं पाई थी। शेरी के कमरे से निकलने के फौरन बाद यासूब ने बड़ी फुर्ती से पूरे कमरे का जायजा लिया और बाथरूम का भी जायजा लिया, ताकि देखे कि कमरा खुफिया कैमरे से बग तो नहीं। मुतमिन होकर इसने दोबारा पलंग पर गद्दा जमाया और इस पर कमर के बल इस तरह लेटा कि इसकी टांगें फर्श पर ही थी। 4 या 5 मिनट की मखसूस वर्जिश करने के बाद अब वो अपने जिस्म को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अगले आधे घंटे में इसने अपने कपड़े तब्दील किए और ठीक 2 बजे वो कमरे के बाहर मौजूद था, जब इसे कॉरिडोर के एक कोने से ऊपर आती सीढ़ियों पर शेरी का टिमटिमाता चेहरा दिखाई दिया। वेल मिस्टर खान, आप तो पहले ही से तैयार हैं। मैं आप ही को लेने आ रही थी। आपने 2 बजे का हुक्म दिया था, सो बंदा हाजिर है। इस मर्तबा यासूब ने जिस लहजे और अंदाज से बात की थी, इससे शेरी को हौसला हुआ। इसने यासूब को अपने पीछे आने का इशारा किया। ड्राइंग रूम से मुल्हिका डाइनिंग रूम में इन दोनों के अलावा सिर्फ एक मुस्तैद बहरा मौजूद था, जिसने देखते ही देखते मेज मुख्तलिफ खानों से सजा दी। खाने से फरागत पर यासूब की ख्वाहिश पर शेरी ने कहवा तैयार करवाया और ऐन इन लम्हात में जब बहरा कहवा ले की प्यालियां एक तश्तरी में सजाए इनकी तरफ आ रहा था, टेलीफोन की घंटी बजी। शेरी ने खुद फोन उठाया और हेलो कहने के बाद दूसरी तरफ से कुछ बात सुनकर यासूब की तरफ मुतवज्जो हुई। कुरैशी साहिब और ज़ियाई साहिब आने की इजाज़त मांग रहे हैं। अगर आप मसरूफ ना हो तो इन्हें बुला लिया जाए, या फिर जब आप चाहें। इसने इजाज़त तलब नजरों से इसकी तरफ देखा। अरे क्यों नहीं, फौरन बुलाई, यासूब ने कहा और कहवे की तरफ मुतवज्जो हो गया। शेरी से इसने कराची से मुतल्लिक बातें शुरू कर दी। वो बड़े नामहसूस अंदाज से मौजूदा हालात से मुतल्लिक इसकी राय दरियाफ्त कर रहा था और शेरी इसके सवालात के जवाबात बड़े मुख्तात अंदाज से दे रही थी। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे जब इंटरकॉम पर कुरैशी और ज़ियाई की आमद की इत्तला मिली। कुरैशी ने बड़ी गर्मजोशी से यासूब से हाथ मिलाया था, जबकि ज़ियाई ने कदरे एहतराम का मुजाहरा करने के बाद अपने हाथ में पड़ा ब्रीफ केस खोला और इसका पिस्टल निकाल कर इसके सामने रख दिया। शुक्रिया कहते हुए यासूब ने पिस्तौल को खोल कर चेक किया और मुतमिन होकर सर हिलाते हुए इसे एक तरफ रख दिया।
गोलियों के पैकेट भी ज़ियाई ने वहां रख दिए थे। शेरी ने इनके लिए चाय मंगवाई और अब वो तीनों अगले मंसूबे की प्लानिंग कर रहे थे। कुरैशी ने शेरी को किसी काम से बाहर भिजवा दिया था। यासूर भी यही चाहता था कि इसकी तरबियत के मुताबिक वहां सिवाय एक शख्स के जिसने इसे मालूमात फराहम करनी थी और किसी की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं था। रा का अपना तरीका कार था और वो इसके किसी काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये बात इसका ऑफिस भी पसंद न करता। इससे बताया गया था कि इसकी हदूद कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होगी और वो अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकता। इसने बहरहाल कुछ तयशुदा असूलों की पाबंदी करनी थी। मिस्टर खान, हम आपको आज शाम इस बैंक्वेट हॉल में ले जाएंगे जहाँ डॉक्टर शाह ने शादी में शिरकत करनी है। शादी को अभी 2 दिन बाकी हैं। आप सूरत हाल का जायजा लेकर जिस तरह के इंतजामात का हुक्म देंगे वो कर दिए जाएंगे।